یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب بنی اسرائیل کی سرزمین پر ایمان و عمل کے چراغ جلتے تھے، مگر دنیا کی رنگینیوں نے اکثر دلوں کو دھندلا دیا تھا۔ وقت کی گرد نے قوموں کے چہرے ماند کر دیے تھے اور لوگ آزمائشوں کے بیچ اپنی سچائیوں کے امتحان دیتے پھرتے تھے۔ انہی دنوں 3 مسافر، 3 دل کے پاک اور نیت کے سچے مرد ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ ان میں پہلا صالح بن عیسیٰ، ایک چرواہا، نرم گفتار اور صابر مزاج۔ دوسرا حارث بن یعقوب، ایک تاجر جس کے دل میں محبت کی آگ کبھی بھڑکی تھی مگر ایمان نے اسے بجھا دیا۔ اور تیسرا یونس بن فاضل، ایک کسان جس کی پیشانی پر سجدوں کا نور تھا اور محنت کے نشان ہاتھوں پر۔ یہ تینوں اس وقت ایک وادی کے سفر پر نکلے تھے جو بیت المقدس سے شمال کی سمت تھی۔ ایک ایسی وادی جو کھجور کے درختوں، ندی کے سنگلاخ راستوں اور پہاڑوں کے دامن میں بسی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش زمین کو دہکانے لگی تھی۔ آسمان شفاف تھا مگر افق کے کنارے پر سیاہ بادلوں کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ہوا نے رخ بدلا اور پہاڑوں کے پیچھے سے گرج کی ایک لرزتی ہوئی آواز آئی، گویا آسمان کسی بڑے راز کی خبر دے رہا ہو۔ صالح نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے ساتھیو، موسم کا حال کچھ ٹھیک نہیں لگتا، بادلوں کی زبان میں عذاب کی بو ہے۔ ابھی اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ ہوا کے جھونکے تیز ہو گئے، گرد اڑنے لگی اور لمحہ بھر میں آسمان سیاہ پردے کی مانند چھا گیا۔ بارش کی پہلی بوند گری تو زمین نے ہچکی لی، پھر یوں محسوس ہوا جسے آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے ہوں۔ طوفان آیا، ایسا طوفان کہ چرند پرند اپنے آشیانے بھول گئے، بجلی چمکی، پہاڑ دہلے اور درخت زمین پر گرنے لگے۔ تینوں مسافر اپنے جانوروں سمیت ایک پہاڑی راستے کی طرف دوڑے۔ ہر طرف پانی کا شور، آسمان کی دھاڑ اور زمین کی لرزش۔ جلدی کرو، کوئی پناہ تلاش کرو، صالح کی آواز گرج کے بیچ گم ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ کے دامن میں غار دکھائی دیا، تنگ مگر محفوظ۔ وہ تینوں وہاں جا پناہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، بارش کا زور کم ہوا مگر اندھیرا بڑھ گیا۔ اندر نمی، بوسیدہ پتھروں کی خوشبو اور دیواروں سے ٹپکتے پانی کی مدھم آواز۔ ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ حارث نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم طوفان سے بچ گئے۔ ابھی اس کی زبان پر شکر کے الفاظ تھے کہ اچانک زمین ہلی۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک عظیم چٹان گڑ گڑاتی ہوئی نیچے آئی اور غار کے دہانے پر آ کر ٹھہر گئی۔ پہلے تو دھواں اٹھا، پھر پتھروں کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ جب گرد بیٹھ گئی تو تینوں نے دیکھا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یونس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندر اندھیرا چھا گیا، جیسے موت نے غار کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا ہو۔ انہوں نے چٹان کو ہلانے کی کوشش کی، کندھے سے زور لگایا، لکڑیاں ٹٹول کر سہارا بنایا مگر پتھر اپنی جگہ سے رتی برابر نہ ہلا۔ سانسیں تیز ہو گئیں، جسم پسینے سے شرابور، تھکن اور خوف نے دلوں کو چور کر دیا۔ ہم مر جائیں گے یہاں، کوئی راستہ نہیں بچا۔ حارث کی آواز لرز گئی۔ صالح نے خاموشی سے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اے رب العالمین، تو ہی نجات دینے والا ہے۔ ہم نے اپنی تدبیر کر لی، اب تیرے در پر فریاد ہے۔ آؤ ہم اپنے اعمال یاد کریں، وہ عمل جو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیے تھے۔ شاید وہ ہمیں نجات دلا دیں۔ یوں تینوں اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ غار میں نمی کی بو تھی، اوپر ٹپکتی بوندوں کی صدا گویا موت کی گنتی کر رہی تھی، مگر ایمان کا چراغ ان کے دلوں میں جلنے لگا۔ پہلے صالح نے اپنی زبان کھولی، اس کی آواز لرزتی ہوئی تھی مگر یقین سے بھری۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی عمر والدین کی خدمت میں گزاری۔ میرے والد ایک وقت کے امام تھے اور والدہ صبر و حیا کی پیکر۔ میں روز چرنے والے جانور لے کر وادی میں جاتا، شام ڈھلے جب واپس آتا
तो दूध दोहकर सबसे पहले अपने वालिदैन को पेश करता। मेरे बच्चे छोटे थे, अक्सर भूख से बिलबिलाते, मगर मैंने हमेशा अपने वालिदैन को मुकद्दम रखा। उनकी खिदमत ही मेरा ईमान थी। एक रात ऐसा हुआ कि रास्ते में ताखीर हो गई। पहाड़ों में भेड़ों का एक झुंड बिछड़ गया। उन्हें वापस लाने में देर हो गई। जब मैं घर पहुंचा तो रात का पिछला पहर था। चिराग बुझ चुका था, वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध का प्याला दोहा और उनके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया, मगर उन्हें जगाने की हिम्मत न हुई। मैंने सोचा वो सारी उम्र मेरे लिए जागते रहे, अब उन्हें नींद में खलल न दूं। मेरे बच्चे मेरे कदमों के पास रो रहे थे, भूख से, कमजोरी से, मगर मैं उन्हें तब तक दूध न दे सकता था जब तक मेरे वालिदैन न पीते। मैंने वो प्याला हाथ में थामे रखा। रात गुजरती रही, सर्द हवा बदन में उतरती रही। नींद के गलबे में कई बार लड़खड़ाया, मगर प्याला न गिरा। आखिर सहर हुई। मुअज्जिन की आवाज फिजा में गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वालिदैन जागे। मैंने झुककर प्याला पेश किया। उन्होंने मुस्कुराकर दुआ दी। कहा, बेटे, तेरी रात का जागना हमारे लिए सदका है। अल्लाह तुझे दीनो दुनिया की इज्जत दे। उस लम्हे मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया और दिल में सुकून उतर गया। ऐ मेरे रब, अगर ये खिदमत मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए की थी तो हमें निजात दे। इस चट्टान को इतना हटा दे कि हम आसमान का चेहरा देख सकें। साले की दुआ खत्म हुई तो गार में एक हल्की सी लर्जिश हुई। चट्टान थोड़ा सा हटी, एक दर्स नमूदार हुई और उस दर्स से एक बारीक किरण अंदर आई। हारिस बिन याकूब ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उस किरण की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी जैसे उम्मीद की सांस। अल्लाहु अकबर, हमारा रब समीउ दुआ है, यूनुस ने कहा और सजदे में गिर गया। फिर दूसरा मुसाफिर हारिस बिन याकूब आहिस्ता आहिस्ता बोला, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि जवानी में मेरे दिल में एक आग भड़की थी। मेरे चचा की एक बेटी थी, हुस्नो हया में लाजवाब। उसके चेहरे पर नूर था, निगाह में वकार। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था, मगर वो नेक और परहेजगार थी। मैंने अपनी ख्वाहिशों के बोझ तले कई रातें काट दी, मगर उसने हमेशा मुझे रोका। उसने कहा, हारिस, अल्लाह से डरो। मोहब्बत अगर पाक ना हो तो वबाल बन जाती है। मैं खामोश रहा, मगर शैतान मेरे दिल में सरगोशी करता रहा। कुछ अरसा बाद कहत आया। उसके घर में फाका पड़ा। वो खुद मेरे पास आई, निगाह नीची थी और कहा, अगर तुम मुझे 100 दिनार दो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैंने पूरे 100 दिनार जमा करने में कई माह लगाए, तिजारत की, मशक्कत की। आखिर जब रकम पूरी हुई तो मैं उसके पास गया। वो गरीब थी, मजबूरी की मार खाई हुई। मैंने उसे रकम दी और उसे करीब किया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसके होंठों से लरसती हुई आवाज निकली, ऐ हारिस, अल्लाह से डरो। इस दिरहम दिनार के बदले में हराम का दरवाजा न खोलो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इस एक जुमले ने मेरे दिल के अंदर आग लगा दी। मैं कांप गया, जिस्म जैसे बेजान हो गया। मैं उसके कदमों के दरमियान से उठा और कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, मैंने तुझे नहीं बल्कि अपने रब को याद किया। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। मैंने उससे कहा, ये 100 दिनार तुम्हारा हक है, इन्हें अपने घर ले जाओ। मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने इन्हें अल्लाह के नाम पर दिया है। फिर मैं वहां से लौट आया, आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून। ऐ मेरे रब, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो उस चट्टान को मजीद हटा दे ताकि हम आजादी की झलक देख सकें। ये अल्फाज कहे ही थे कि चट्टान थोड़ी और हिली। अब रोशनी की किरण एक लकीर से बढ़कर एक शिगाफ बन चुकी थी। अंदर की हवा कुछ साफ हुई। उनके चेहरों पर उम्मीद की ताजगी आ गई। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, अब मेरी बारी है। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं एक किसान हूं, रिस्क जमीन के पेट से कमाता हूं। एक बार मैंने एक मजदूर को काम पे रखा। उसने पूरा दिन मेरे खेत में मेहनत की। जब दिन ढला, मैंने उसे उसकी उजरत के तौर पर एक मुट्ठी चावल देने चाहे। उसने गुस्से से कहा, यह कम है, मैंने सारा दिन मेहनत की है। मैंने कहा, भाई, यही मेरे पास है,
कबूल कर लो, बाकी जब मुयस्सर हुआ दूंगा। मगर वो नाराज होकर चला गया। मैंने उसका हिस्सा महफूज रखा। अगले दिन सोचा, ये चावल किसी काम के नहीं, क्यों ना इन्हें जमीन में बो दूं। मैंने वो चावल बो दिए, बारिश बरसी, फसल उगाई। मैंने उससे तिजारत की। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि मैंने उन चावलों की कमाई से एक गाय और चरवाहा खरीदा। बरसों बाद वही मजदूर वापस आया। चेहरे पर बुढ़ापे के आसार थे और बोला, ए यूनस, मैं अपनी उजरत लेने आया हूं। मैंने उसे कहा, आओ मेरे साथ खेत तक। ये देखो, ये गाय और चरवाहा, ये सब तुम्हारा है। तुम्हारी उस अमानत से परवान चढ़ा है। वो हैरान रह गया, बोला, क्या तुम मुझसे मजाक करते हो? मैंने कहा, खुदा की कसम, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। जो कुछ मेरी जमीन ने उगाया वो तुम्हारा है। ले जाओ, मैंने इसे अल्लाह के नाम पर तेरे सपुर्द किया। ऐ मेरे रब, अगर मैंने ये काम खालिस तेरी रजा के लिए किया था तो हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और इस चट्टान को हटा दे। यूनस की जबान से आखिरी लफ्ज अभी निकला ही था कि पहाड़ गूंजा, जमीन हिली और चट्टान आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। तीनों सजदे में गिर पड़े। चट्टान सरक कर एक तरफ हो गई। गार का दहाना खुल गया। सूरज की किरणें अंदर आईं। तीनों के चेहरों पर नूर छा गया। ये वो लम्हा था जब अंधेरे में बंद तीन इंसानों को यकीन हो गया कि खलूस की ताकत हर कुफ्ल को तोड़ देती है। और यूं गार के दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए वो तीनों आसमान की तरफ देखकर बोले, ए रब, तेरा शुक्र, हमने दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत देख ली कि नियत अगर खालिस हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। जब वो तीनों गार से बाहर निकले तो पहाड़ों के दामन में सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। फिजा में नरमी थी, परिंदे नगमा सरा और हर सिमत बाराने रहमत के बाद मट्टी की खुशबू। मगर उन तीनों के दिलों में जो रोशनी उतर चुकी थी वो सूरज की किरणों से ज्यादा तेज थी। ऐसी रोशनी जो सिर्फ निजात पाने वाले दिलों में ही जन्म लेती है। सालेह बिन ईसा ने मट्टी पर सजदा किया। उसके लबों से निकला, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हमें उस अंधेरे से बचा लिया जो जाहिरी भी था और बातनी भी। यूनुस ने कहा, यह महज गार से निकलने की निजात नहीं थी, बल्कि ये ईमान की तजदीद थी। हमने जाना कि नियत की पाकीज़गी पहाड़ से भारी और खुलूस का अमल चट्टान से ज्यादा ताकतवर होता है। हारिस खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर नूर और निदामत का एक हसीन इंतजाज था। वो बोला, मैंने बरसों अपने दिल के गुनाह को तौबा से धोया, मगर आज समझा कि निजात उस वक्त मिलती है जब इंसान अपनी कमजोरी को रब की कुदरत के हवाले करते। दिल का गार भी उसी वक्त रोशन होता है जब उसमें तौबा का चिराग जलता है। वो तीनों पहाड़ से उतरकर एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के पानी में आसमान का अक्स लहरा रहा था। सालेह ने हाथ धोए और अपने कपड़े निचोड़ते हुए कहा, यह पानी गुजरे हुए खौफों को धो रहा है, मगर इंसान के दिल के अंधेरे सिर्फ ईमान से धुलते हैं। यूनुस मुस्कुराकर बोला, दिल अर्श का दरवाजा है, जब वो खुलता है तो गार की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती हैं। उन्होंने गार की सिमत आखिरी बार निगाह डाली। वो पहाड़ अब उनके लिए महज एक याद नहीं बल्कि ईमान की अलामत बन चुका था। उसके सीने पर वो गार अब भी था, खामोश मगर गोया। हवा जब भी उसके दहाने से गुजरती तो एक मदहम सा नगमा गूंजता, जो खुलूस से पुकारे उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। चंद रोज के सफर के बाद वो अपनी बस्तियों को लौटे। लोगों ने पूछा, तुम कहाँ गायब थे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम गार के अंधेरे में रोशनी तलाश करने गए थे और वो रोशनी हम में लौट आई है। सालेह ने अपने वालिदैन की खिदमत पहले से ज्यादा इखलास से की। हारिस ने अपनी दौलत राह खैर में खर्च कर दी ताकि कोई औरत कहत में मजबूर ना हो। यूनुस ने अपने खेतों के किनारे एक कुआं खुदवाया जिससे मुसाफिर पानी पीते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। वक्त गुजरता गया मगर उनके किस्से का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। बच्चों को सुनाया जाने वाला वो किस्सा अब ईमान की मिसाल बन गया। साल बाद जब तीनों अपने बुढ़ापे में पहुंचे,
एक रात वो फिर उसी पहाड़ की सिमत गए। चांदनी रात थी और गार अब भी वैसा ही था, मगर दिहाना खुला हुआ। उन्होंने सजदा किया और सालेह ने धीमी आवाज में कहा, ये गार अब हमें नहीं बल्कि आने वालों को पुकार रहा है। हर इंसान के दिल में एक गार होता है जहां शक, खौफ और आजमाइश के पत्थर जमा रहते हैं और उस वक्त तक नहीं हटते जब तक इंसान खुलूस के आमाल से दर न खोल दे। यूनुस ने कहा, अमल वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, अमल वो है जो रब के सामने छुप कर किया जाए। जो अपने दिल के गार में ईमान का चिराग जला ले, उसके लिए अंधेरा कभी नहीं रहता। और हारिस ने कहा, हमने सीखा कि मोहब्बत अगर हलाल की हदों में रहे तो इबादत है, और अगर ख्वाहिश का गुलाम बन जाए तो हलाकत। निजात इसी में है कि बंदा अपनी चाहत को रब की रजा में बदल दे।